اس وقت تمام دنیا کی نظریں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اقدامات پر ہیں۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار صدر بنے ہیں اس وقت سے امریکہ کے حلیفوں، عدالتوں، یونیورسٹیوں اور میڈیا سمیت سب سے لڑ رہے ہیں۔ کبھی وہ کسی کے خلاف محاذ کھول رہے ہیں تو کبھی کسی کے خلاف محاذ کھول رہے ہیں، اور ان کے اقدامات نے نہ صرف دنیا کو پریشان کر دیا ہے بلکہ خود امریکی مارکیٹس اور عوام بھی ہل کر رہ گئے ہیں۔ امریکی ڈالر دنیا کی دیگر بڑی کرنسیز کے مقابلے میں مسلسل گر رہا ہے، دباؤ میں ہے۔ امریکی ٹریجریز پر دباؤ بڑھ رہا ہے کیونکہ امریکی بانڈ کو تیزی سے ڈمپ کیا گیا۔ امریکی مارکیٹس ٹرمپ کی طرف سے چین کے علاوہ دیگر ممالک پر اضافی ٹیرفز کو 90 دن کے لیے معطل کرنے کے اعلان کے بعد بھی سنبھل نہیں پا رہی ہیں، اور سرمایہ کار سونے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جس سے سونے کی قیمت ہر دوسرے دن نیا ریکارڈ بنا رہی ہے اور اب $3,350 تک جا پہنچی۔ اسی وجہ سے پاکستان میں بھی سونے کی فی تولہ قیمت $3,50,000 پر پہنچ چکی ہے، اور اب امریکہ کے فیڈرل ریزرو کے چیئرمین نے بھی صدر ٹرمپ کی جانب سے لگائے گئے ٹیرفز اور پالیسی اقدامات کے امریکی معیشت پر پڑنے والے اثرات پر خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹیرفز کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال طویل عرصے تک معیشت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ٹیرف کی قیمت امریکی عوام کو بھی ادا کرنی ہوگی۔ معاشی نقصان میں معاشی ترقی میں کمی، بے روزگاری اور مہنگائی میں تیزی سے اضافہ شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹرمپ کی حکومت آنے سے پہلے 2024 میں معیشت کیسے بہتر کارکردگی دکھا رہی تھی۔ 2024 was a year where the economy grew 2.4%. 2024 ایک ایسا سال تھا جس میں معیشت نے 2.4% سے ترقی کی، بے روزگاری بہت کم رہی اور مہنگائی نیچے آتے آتے سال کے آخر میں 2.5% پر آ گئی۔ یہ ہماری معیشت کی صورتحال تھی۔ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں اس صورتحال میں نئی حکومت بہت سی پالیسی تبدیلیاں کر رہی ہے، جس میں سب سے زیادہ توجہ تجارت پر ہے، اور ان اقدامات کے اثرات ہمیں ہمارے اہداف سے دور لے جائیں گے۔ معیشت سست ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو جائے گا، اور ان ٹیرفز کی قیمت امریکی عوام بھی ایک حد تک ادا کریں گے۔ امریکہ کے فیڈرل ریزرو کے چیئرمین تو کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے اقدامات نے خود فیڈرل ریزرو کو بھی ایک ایسی صورتحال میں ڈال دیا ہے جس کا سامنا اس نے پہلے نہیں کیا۔ دوسری طرف امریکی میڈیا یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ٹرمپ کے اقدامات امریکہ کے بطور ملک برانڈ کو تباہ کر رہے ہیں، اور اپنے دوسرے دور میں وہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر سب سے لڑ رہے ہیں۔ CNN میں ایلیسن مورو کے تجزیے کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے ٹیرفز کے اعلان سے پہلے بھی متعدد یورپی ممالک سمیت کینیڈا اور چین نے اپنے شہریوں کو یہ وارننگ جاری کر دی تھی کہ امریکہ جانے کی صورت میں انہیں بارڈر پر ہی حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر کینیڈا کے شہریوں نے تو کھل کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کی پالیسیز اور ٹیرفز کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے امریکہ کے ٹرپس کو کینسل کر دیا۔ مگر یہ صرف کینیڈین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مارچ کے مہینے میں دنیا بھر سے امریکی ایئرپورٹس پر آنے والے لوگوں کی تعداد میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 20% کمی دیکھی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے 2000 ارب یعنی $2 ٹریلین کی امریکی ٹریول اور ٹورزم انڈسٹری کے لیے خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں امریکہ میں بنائی گئی پروڈکٹس کی فروخت متاثر ہو رہی ہیں، خاص طور پر چین میں، کہ جس پر صدر ٹرمپ نے 145% ٹیرف لگا دیے ہیں۔ منگل کے دن بلومبرگ نے رپورٹ کیا کہ چین نے امریکہ کی جہاز بنانے والی کمپنی بوئنگ کے جہازوں کی ڈلیوریاں روک دی ہیں۔ بوئنگ کمپنی امریکہ کی بڑی کمپنی ہے جو براہ راست یا بالواسطہ طور پر 16 لاکھ لوگوں کو روزگار دیتی ہے۔ اب یا تو چین کی طرف سے اٹھایا گیا یہ قدم بلومبرگ کے مطابق امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی حکمت عملی ہو سکتا ہے، یا پھر ایک مستقل بائیکاٹ ہو سکتا ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ یہ بوئنگ کمپنی کے لیے ایک بہت بری خبر ہے جو 5 سال سے منافع دکھانے میں ناکام رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بوئنگ کی یورپی حریف ایئر بس کے لیے ایک شاندار تجارتی خبر ہے۔ CNN کے لیے کرس آئسڈور کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اس کے تجارتی پارٹنرز کے درمیان لڑائی میں زیادہ امریکی کمپنی بوئنگ ہی متاثر ہوگی، کیونکہ دیگر امریکی کمپنیوں کے برعکس بوئنگ اپنے تمام جہاز امریکہ میں اپنی فیکٹریز میں بناتی ہے، مگر ان جہازوں کا 2/3 حصہ امریکہ سے باہر دیگر ممالک کو فروخت کرتی ہے۔ بوئنگ کا امریکی معیشت میں ایک بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ $79 ارب کے ساتھ ساتھ یہ کمپنی براہ راست اور بالواسطہ طور پر 16 لاکھ لوگوں کو نوکری دیتی ہے۔ خود کمپنی کے امریکہ کے اندر 1.5 لاکھ ملازمین ہیں۔ بوئنگ کے اپنے اندازے کے مطابق اسے اگلے 20 سال میں چینی ایئر لائنز کو 8,830 نئے جہاز فروخت کرنے تھے، مگر اب چین کی طرف سے 125% جوابی ٹیرف لگنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ایک جہاز ملینز آف ڈالرز کا ہوتا ہے، اور اگر اس جہاز پر اس کی قیمت سے زیادہ یعنی 125% ٹیرف لگ جائے گا تو اس کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس صورت میں چینی ایئر لائنز بوئنگ کے جہازوں کو افورڈ نہیں کر پائیں گی۔ یوٹا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اکنامکس کے پروفیسر جان گلبرٹ کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ امریکی گرانٹس اور مینوفیکچررز کو موجودہ ماحول میں متعدد خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ خطرات صرف
दीगर ममालिक की तरफ से अमेरिका पर लगाए गए जवाबी टैरिफ की वजह से नहीं होंगे, बल्कि उन ममालिक में अवाम की जानिब से अमरीकी प्रोडक्ट्स के खिलाफ रद्द-ए-अमल की वजह से भी होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लोग भूलते नहीं हैं, इसलिए अगर इन ममालिक की हुकूमतों का अमरीका के साथ मुआहदा हो भी गया तो भी ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि सदर ट्रंप के हालिया इक़दामात को लोग भूलकर माजी की तरह अमरीकी प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। एलिसन मोरो ने इस हवाले से अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की मिसाल दी है। उनके मुताबिक जब सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट्स गिरी तो सरमायाकारों को अमरीकी बॉन्ड्स का रुख करना चाहिए था, जो सरमायाकारी के लिए दुनिया भर में महफूज तरीन ख्याल किए जाते हैं। मगर सरमायाकारों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अमरीका के महफूज ट्रेजरी बॉन्ड्स भी रिस्की नजर आने लगे, जो इस बात की अलामत था कि सरमायाकार ये एतमाद खो रहे हैं कि अमरीका अपना कर्ज अदा करने और अपनी मईशत संभालने की सलाहियत रखता है, और ये अमरीकी मईशत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात थी। और दूसरी तरफ अमरीकी डॉलर मुसलसल अपनी कदर खो रहा है, और ये भी इस बात की अलामत है कि सरमायाकार तारीखी तौर पर महफूज ख्याल की जाने वाली करेंसी से भी दूर भाग रहे हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के सीनियर फेलो हाइडी क्रेबो रेडिकर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ओन गोल पहले कभी नहीं देखा जिसने दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स में अमेरिका की साख्त को इतनी बुरी तरह मुतासिर किया हो। ये सूरत हाल माजी में आने वाले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी मुख्तलिफ है। कोविड भी एक बैरूनी धचका था, मगर अमेरिका को मौजूदा धचका सीधा व्हाइट हाउस के अंदर से लगाया गया है। इस सूरत हाल में ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो 90 दिन के अंदर चीन के अलावा दीगर ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे कर लेंगे और इसका अमेरिकी मईशत को बहुत फायदा होगा। और मुआहदा न होने की सूरत में वो धमकियां भी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके हलीफ ममालिक भी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। 27 यूरोपीय ममालिक के इत्तेहाद यूरोपीय यूनियन ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो यूरोपीय यूनियन भी सैकड़ों अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा देगा। जबकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर इसकी कुछ शराइत हैं। चीन चाहता है कि सदर ट्रंप कुछ ऐसे इक़दामात करें जिससे मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाए। इन इक़दामात में सदर ट्रंप के काबीना अरकान की जानिब से तौहीन आमेज़ बयानात का रोका जाना भी शामिल है, जबकि दीगर शराइत में एक ये शर्त भी शामिल है कि अमेरिका ताइवान के हवाले से अपनी पॉलिसी में इस तरह तसलसल लाएगा कि उससे चीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हों। चीन ये भी चाहता है कि सदर ट्रंप अपना एक पॉइंट पर्सन नामजद करें जिससे उनका मुकम्मल एतमाद हासिल हो, और वो पॉइंट पर्सन चीनी ऑफिशियल्स के साथ मुज़ाकरात करके एक ऐसी डील पर इत्तफाक करे जिस पर बाद में मुलाकात में चीनी और अमरीकी सदर दस्तखत करें। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये बात अब तक वाज़ेह नहीं है कि दोनों ममालिक के दरमियान ब्रेक थ्रू की क्या वजह हो सकती है। हालांकि दोनों ममालिक ये तो कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर अगर वो मुज़ाकरात के लाए अमल पर मुत्तफ़िक हो भी जाएं तो ये बुनियादी सवाल अपनी जगह बरकरार रहेगा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा कैसे होगा, क्योंकि ट्रंप के मुतालबात गैर वाज़ेह हैं। और अगर ट्रंप चाहते हैं कि चीन के साथ अमेरिका का तिजारती खसारा कम हो और मैन्युफैक्चरर्स अपनी फैक्ट्रियां अमेरिका में मुंतकिल करें तो चीनी मसनूआत पर टैरिफ को ज़्यादा ही रखना होगा। खबर के मुताबिक बीजिंग की सोच से वाकिफ एक शख्स के मुताबिक मुज़ाकरात से पहले चीन की सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि मुज़ाकरात बाहिनी एहतराम के साथ किए जाएं। हालांकि सदर ट्रंप के बयानात में उनका रवैया चीनी सदर शी के बारे में मुनासिब रहा है, मगर उनकी काबीना के दीगर अरकान जारहाना बयानात देते रहे हैं, जिससे चीन में मौजूद ऑफिशियल्स ये फैसला नहीं कर पा रहे कि अमेरिका की असल पॉलिसी क्या है। चीन का यह मानना है कि सदर ट्रंप को अपनी इंतजामिया पर भरपूर कंट्रोल हासिल है, इसलिए जब उनकी इंतजामिया के अरकान चीन के बारे में मनफी बयानात देते हैं और ट्रंप उन्हें नहीं रोकते तो चीनी ऑफिशियल समझते हैं कि ये बयानात सदर ट्रंप की मर्जी से दिए जा रहे हैं। चीनी ऑफिशियल्स ये भी समझते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात को सदर ट्रंप खुद लीड करना चाहेंगे, मगर बेहतर यही होगा कि दोनों ममालिक के सदूर की तरफ से नामजद करदा ऑफिशियल्स मिलकर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं, जिसके नतीजे में सदर ट्रंप और सदर शी के दरमियान बामानी मुलाकात हो जाए। इस सब के दरमियान इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि चीन के पास एक बहुत बड़ा हथियार मौजूद है जिसके इस्तेमाल से अमरीकी कंपनियों के लिए मसाइल में कई गुना इजाफा हो सकता है। बीबीसी के लिए सुराजना तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर्स वॉशिंग मशीन से लेकर आईफोन तक और लड़ाका फौजी तैयारों से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक सब में इस्तेमाल होते हैं। इन छोटे से सिलिकॉन वेफर्स को चिप्स कहा जाता है, और ये चिप्स इजाद तो अमेरिका में हुई थी, मगर आज अमेरिका में नहीं बल्कि एशिया में बहुत बड़े स्केल पर बहुत एडवांस चिप्स तैयार की जाती हैं। एशिया में इतने बड़े स्केल पर चिप्स की पैदावार एक बहुत कॉम्प्लेक्स अमल बन गया है। मिसाल के तौर पर एक आईफोन में इस्तेमाल होने वाली चिप्स अमेरिका में डिज़ाइन होती हैं, मगर उसे तैयार ताइवान, जापान या कोरिया में किया जाता है। और इन चिप्स की तैयारी में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, इनमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं जो चीन में निकाले जाते हैं। इसके बाद इन आईफोन्स को पैकेजिंग के लिए वियतनाम भेज दिया जाता है, फिर वियतनाम से असेंबलिंग और टेस्टिंग के लिए वापस चीन भेज दिया जाता है, और उसके बाद ये आईफोन इस्तेमाल करने के लिए
अमेरिका भेज दिए जाते हैं। ये इकोसिस्टम दहाइयों में वजूद में आया है। आर्टिकल के मुताबिक अमेरिकी रियासत एरिजोना में हाई क्वालिटी चिप्स तैयार की जाती हैं, मगर वो ताइवान की जदीद टेक्नोलॉजी के मुकाबले में दहाइयों पीछे हैं। अगर सदर ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में जदीद चिप्स इतनी बड़ी तादाद में बनाई जाएं, तो ये मुश्किल नजर आता है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत चीन और इंडिया से स्किल्ड टैलेंट को अमेरिका लाना भी मुश्किल होगा, जिससे ये काम और मुश्किल हो जाएगा। खुद एलॉन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला के लिए दीगर ममालिक से इंजीनियर्स लाने में इमिग्रेशन मसाइल की निशानदेही कर चुके हैं। ताहम CNN के लिए नेक्टर गैन और जॉन लिव के तज्जिए के मुताबिक अमेरिका के साथ तिजारती जंग में चीन के पास एक ताकतवर हथियार मौजूद है, जिसकी तैयारी सदर ट्रंप के दौर में पहली तिजारती जंग के आगाज के फौरन बाद ही चीन ने शुरू कर दी थी। तज्जिए के मुताबिक सदर ट्रंप के पहले दौर में जब तिजारती जंग शुरू हुई तो एक साल के अंदर सदर शी ने चीन में गांजू में 2019 में एक फैक्ट्री का एक हाई प्रोफाइल दौरा किया और ऐलान किया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। और इस ऐलान के 6 साल बाद चीन दुनिया भर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई में अपनी अजारादारी कायम कर चुका है और ये अजारादारी अमेरिका के खिलाफ तिजारती जंग में सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये मादनियात आईफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जदीद चीज को पावर फराहम करने के लिए बुनियादी जुज हैं और मुस्तकबिल में हर टेक्नोलॉजी के लिए ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स अहम होंगे। और टैरिफ के बरक्स ये एक ऐसी चीज है जिसका ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं है। रेयर अर्थ 17 एलिमेंट्स का एक ऐसा ग्रुप है जो सोने से भी ज्यादा मिकदार में दुनिया के बहुत से ममालिक में पाया जाता है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, मगर इन्हें निकालना मुश्किल, महंगा और माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का बाइस बन सकता है। दहाइयों से अमेरिका और दीगर ममालिक चीन पर इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए इन्हिसार करते आए हैं, जहां इन एलिमेंट्स को प्रोसेस भी किया जाता है। चीन दुनिया भर की रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रोडक्शन का 61% पैदा करता है, मगर अगर इन एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग की बात की जाए तो दुनिया भर की पैदावार का 92% चीन में प्रोसेस होता है। सालों से चीन इस हवाले से वार्निंग देता आया है, मगर जब सदर ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ का ऐलान किया तो चीन ने जवाब में 7 किस्म के रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी और अब उन एलिमेंट्स की बरामद हुकूमत की इजाजत से मशरूत है, जो आईफोन, कार्स, जेट इंजन, MRI मशीन्स, बड़े हथियारों जिनमें अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी शामिल है, इन सब की मोटर्स और जनरेटर्स में इस्तेमाल होते हैं। मंगल के दिन ट्रंप ने इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया कि चीन की तरफ से इन पाबंदियों के अमेरिकी सिक्योरिटी और मईशत पर क्या असरात मुरत्तिब होंगे। खबर के मुताबिक चीन ने ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बरामद पर पाबंदी लगा दी है जो कम से कम 5 अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। US रेयर अर्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोशुआ बेलर्ड के मुताबिक हेवी रेयर अर्थ बहुत कीमती होते हैं क्योंकि कम पाए जाते हैं और उन्हें प्रोसेस करना भी मुश्किल होता है, जबकि चीन इन एलिमेंट्स की 98% सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिसका मतलब यह है कि रेयर अर्थ प्रोसेस करने वाली चीनी कंपनियां चीनी हुकूमत की इजाज़त से अब अमेरिकी कंपनियों को ये रेयर अर्थ बरामद करेंगी और इस वक्त ये बरामदात तकरीबन मुअत्तिल हो चुकी हैं और अमेरिकी कंपनियों के पास उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री भी मौजूद नहीं है। बेलर्ड के मुताबिक ये चीन के पास सबसे अहम कार्ड है क्योंकि चीन के पास सदर ट्रंप की जानिब से लगाए गए टैरिफ के मुकाबले में तो कोई लेवरेज नहीं है, मगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई एक बहुत बड़ा लेवरेज है अमेरिका में। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने भी बताया कि कंपनियां सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई को लेकर परेशान हैं। ये सारी सूरत हाल गैर यकीनी पैदा कर रही है। Many of them are CEOs of significant companies. अमेरिका में मुतादिद बड़ी कंपनीज के CEOs इस वक्त अपनी कंपनी में बनाए जाने वाली प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली दरामदी अशिया के हवाले से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल से बहुत परेशान हैं। अगर आप कुछ अर्सा कोविड के दौरान की सूरत हाल को याद करें तो उस वक्त सेमीकंडक्टर्स की कमी हो गई थी और इसी वजह से गाड़ियों के बनने में रुकावटों का सामना था और वो शॉर्टेज काफी लंबा अरसा रही, जिसकी वजह से महंगाई भी लंबे अरसे रही। मौजूदा केस में आपको ऐसी कार बनाने वाली कंपनीज नजर आएंगी जिनकी सप्लाई चेन हुकूमती इक़दामात और टैरिफ्स की वजह से मुतासिर हो जाएगी और इस अमल को दोबारा ठीक होने में वक्त लग सकता है, जिससे महंगाई तवील अरसे तक रह सकती है। ये सारी सूरत हाल बहुत गैर यकीनी है क्योंकि जब टैरिफ्स के हवाले से सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह होगी तभी उनके मुआशी असरात का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। इन तमाम इक़दामात की वजह से सदर ट्रंप तेज़ी से अमरीकी अवाम में अपनी मकबूलियत खो रहे हैं। हालिया सर्वे में अवाम ने इस बात का इज़हार किया कि वह सदर ट्रंप के मुआशी इक़दामात से खुश नहीं है।
CBS News YouGov poll came out earlier today, and I will. CBS न्यूज़ YGA पोल आज सामने आया है और मैं वाज़ेह अल्फाज में कहूँगा, मुझे यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मुद्दत में हासिल होने वाला ये बदतरीन पोल है। मईशत के बारे में बात करते हैं। कितने लोग सोचते हैं कि मईशत खराब हो रही है? नवंबर में ये 42% अमरीकी थे। इस टाइमलाइन को फॉलो करने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। फरवरी तक ये 49% था, मार्च 51%, और देखिए अब हम कहाँ हैं, 53% पर। अमरीकियों की वाज़ेह अक्सरियत का ख्याल है कि मईशत बदतर हो रही है और ये तादाद बढ़ रही है। जब ट्रंप दूसरी बार जीते तो ये शरह 42% थी, अब हम 11% ऊपर हैं, वाज़ेह इजाफा यानी 53%। ये पोल और खास तौर पर ये तादाद अमरीका के सदर के लिए किसी भी तरह फायदेमंद नहीं है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि मुआशी हालात का ज्यादा जिम्मेदार कौन है। मार्च में CBS न्यूज ने महंगाई के बारे में पूछा और 38% ने कहा कि जो बाइडन ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसके मुकाबले में 34% ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अब अप्रैल के महीने में आगे बढ़ते हैं। इस नंबर को देखें, 54% अमरीकियों का कहना है कि मईशत की हालत के लिए जो बाइडन से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। जो बाइडन की शरह 38% से कम होकर 21% रह गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मईशत के लिए जो बाइडन को मूरिद इल्जाम ठहराने की कोशिश की और शायद ये हरबा 1 माह पहले मार्च के महीने तक काम कर रहा था, लेकिन टैरिफ की जंग के बाद अब ये काम नहीं कर रहा है। अमरीकी वो नहीं खरीद रहे जो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बेच रहे हैं। वाज़ेह अक्सरियत यानी 54% का ख्याल है कि इस वक्त मईशत की हालत के लिए जो बाइडन के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा जिम्मेदार हैं। जाहिर है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इस वक्त मईशत की हालत की बात की जाए तो सबसे बड़ी चीज टैरिफ है। तो आइए यहाँ एक नजर डालते हैं। जनवरी में 48% ने कहा कि वो इन टैरिफ्स के हक में हैं, जबकि 46% ने मुखालिफत की। देखिए कि अब हम कहाँ हैं। अब वाज़ेह अक्सरियत यानी 58% अमरीकियों ने इन नए टैरिफ्स की मुखालिफत की है, जबकि सिर्फ 42% ने हिमायत की है। ज्यादा से ज्यादा लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। मईशत के बारे में उनके ख्यालात बदतर होते जा रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन ट्रंप के लिए मज़हका खेज हद तक खौफनाक है। उनके हक में रहने वालों की शरह 48 से 42% और मुखालिफिन की शरह 46 से 58% हो गई है। अमरीकियों ने डोनाल्ड ट्रंप की मुआशी पॉलिसी पर बड़े पैमाने पर मनफी रवैया इख्तियार कर लिया है और ऐसा टैरिफ की वजह से हुआ है जो कि उन्हें पसंद नहीं है, और ये उन लोगों के लिए ट्रंप के मंसूबे का सबसे बड़ा मसला है। और ट्रंप इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ 37% अमरीकी इसे पसंद करते हैं और ये देखिए 63%, तकरीबन 2/3 इसे नापसंद करते हैं, जबकि आज़ाद वोटर्स में सिर्फ 28% लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के तिजारत में टैरिफ्स के तरीके को पसंद करते हैं। आइए यहाँ एक नजर डालते हैं। फरवरी के शुरू में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग +6 थी, फरवरी के आखिर में +2 और मार्च में 0 हो गई, यानी मंजूरी और नामंजूरी बराबर थी। और देखिए अब हम कहाँ हैं, -6 पॉइंट्स। वो कम से कम अपनी दूसरी मियाद में पहली बार मुश्किल में है। ये ट्रेंड लाइन है जो बहुत अहम है। अमरीकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था ये अब तक की सबसे बुरी रेटिंग है जो ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत में हासिल की है। The worst poll that Trump has received in his second term so far.